Good morning, everyone. Ma'am. Ma'am. Good ma'am. Good morning, and welcome to the English communication class, all of you. I Thank you, got ma'am. little late. I got little late due to certain reasons. So anyway, it's always nice, right? So how is the weather today? Good morning, ma'am. Ma'am, weather is cloudy. Weather is cloudy. Okay, that's good. That's great. We have people from different places, so weather may be different at different places, right? In the Yes, ma'am. class which I have taken last week, I have talked about introduction, how to introduce yourself. ठीक है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, हमने उसके बारे में क्लास की थी. तो who is there from the last week? Ananta is there, Tarun is also there, right? So in that class, I have just told you that there are certain ways to introduce. Recording is available इन दिस टीचमेंट ऐप ओनली. उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है टीचमेंट ऐप पे. आप सबने शायद देखी होगी. देखी है? किस किस ने देखी है? Ma'am, me. टीचमेंट ऐप पे ही here if you just check in the recording section, then you can easily see the recording of the class which I have taken earlier. So have you seen that recording? क्या आपने देखी है वो recording बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, that's very good. So introduction के लिए first of all I just want to listen from everybody, all of you. First you need to introduce yourself. Let me see how are you introducing yourself. Okay. So who is going to speak first? Can we start with Tarun? तरुण आपसे स्टार्ट करें. आप इंट्रोडक्शन देंगे अपनी Yes, सबसे ma'am. पहले. ओके Yes, ma'am. स्टार्ट योर Good, इंट्रोडक्शन. good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Ma'am, my गिव name योर is Tarun Sharma. यस. Ma'am, what are you saying? I said give your introduction to everyone. Yes, ma'am. Good morning to everyone. My name is Tarun Sharma. I am a boy. I am 11 years old. I am from class 7th. My I have I have, but Tarun, you didn't practice, huh? I I like to do many things. I read the books. My hobby is playing and reading books. Yes, very I good, love very it. good. I love with pets. I like to help everyone. Yes, Thank you. excellent, excellent. So that's the way. See, beta, when you are going to introduce yourself, then you are required to speak 7 to 8 sentences, more than that. But I don't want anyone to speak only 2 or 3 sentences. Okay? Clear? Okay, Ananta, beta, give your introduction. Hello, I am Ananta. I am 14 years old. There are 5 of us in my family. I live with my grandfather, grandmother, father, and my mother. My birthday is on 17th of August. I study in school. My hobby is dancing and reading English stories. I also like painting when I am free. My favorite subject is science. My favorite day of week is Monday because it's time for finding new things in the life. My best What? quality is my truthworthy. I am of openness personality. Thank you for giving time to introduce myself. Excellent, excellent, wonderful. I love the way you have just informed about everything. ठीक है, बाकी सबने सुना बेटा कैसे इसने अपनी इंट्रोडक्शन दी? सबने सुना?
Yes, ma'am. तो आपने भी जब अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, सभी ने ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो मैंने पिछले वाले क्लास में शेयर किए हैं, तो आप रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि क्या क्या पॉइंट्स आपको अपनी इंट्रोडक्शन में बोलने हैं। एंड इवन I have very clearly said that no one is going to start the introduction with, किस वर्ड से नहीं स्टार्ट करनी है आपको अपनी इंट्रोडक्शन, जिसने रिकॉर्डिंग सुनी होगी उसको पता है। Myself. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। माई सेल्फ से कोई भी अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। आजकल ये बहुत ट्रेंड है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, इवन के बहुत सारे एल्डर्स भी, व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग दे जस्ट से माई सेल्फ सो एंड सो। सो again I am stressing on the fact that that is the very very wrong way of introducing yourself. That is totally wrong English. Okay, so no one is going to say myself. You can say I am Ranjana Prashar or my name is Ranjana Prashar. So like that. ठीक है, clear है? Okay, so we Yes, have ma'am. now Aditya, Nandini and Vishali. Okay, Nandini beta, give your introduction. Yes, ma'am. Hello everyone, I am Nandini. I am from India. I am 16 years old. There are 6 of us in my family. My birthday is on 16 June. My hobby is dancing and reading English stories. I also like to watch TV when I am free. I am interested in reading stories. Uh, I have got a dog pet. My best quality is I am frank, and my friend name is Palak Sharma. I study English because I love English. Thank you. Wonderful, that's wonderful. Okay, I am very friendly, right? There you are supposed to say I am very friendly, and then you have to talk about your friend. Okay? Okay, ma'am. Okay, that's great. Then next we have Aditya. Yes, Aditya beta, give your introduction. Hello, my name is Aditya Gloria. I study in 7th class. My school name is DAV Senior Secondary School, Bankhandi. My friend is Anmol, and I am from Yes. Triple. Excellent, excellent. Anything more, beta? बेटा when you are just introducing yourself, जब आप अपनी introduction दे रहे हैं ना आदित्य बेटा, आपको थोड़ा और बताना है अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, आपके बर्थडे के बारे में, ठीक है। आप अपनी इंट्रोडक्शन एक अच्छी सी रेडी करेंगे, उसमें थोड़े और सेंटेंसेस ऐड करेंगे। आपकी हॉबी क्या है, आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक में आपसे दोबारा से आपको कहूँगी कि अपनी इंट्रोडक्शन दो। Okay? Okay, ma'am. Okay. So beta, now in the way we was learning earlier, today I am going to talk about first thing that whenever we are just learning English, we should know basically what are the main words in English. राइट तो आपको नाउन से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टेक दैट इज नाउन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नाउन? नाउन तो आप सबने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, राइट? ओके, एनी आइडिया? कुछ आइडिया है आपको नाउन या संज्ञा क्या होता है? व्हाट इज अ नाउन और संज्ञा? Anyone can speak. जिसको भी कुछ भी आइडिया है आप कोई भी बोल सकते हैं बेटा। जैसा भी आपके माइंड में आइडिया है, जो भी आपको पता है नाउन के बारे में, यू कैन टेल। नहीं पता है तो आई विल बी टेलिंग यू। Ma'am, naming words. Excellent, excellent. That's the
right way to say all the naming words, right? The words whichever we use for naming anything, जिस भी word को हम use करते हैं name करने के लिए, जैसे हम आप सबने अपना अपना नेम बताया, ठीक है, सो दैट इज अ नाउन. आप कहाँ रहते हैं वो भी आपने एक नेम बताया किसी प्लेस का, ठीक है. आप क्या पढ़ते हैं वो भी आपने बताया कि कोई बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, हिंदी की बुक्स पढ़ते हैं. तो ये जो चीजें, बुक्स क्या है, दिस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ थिंग, ठीक है. तो किसी भी चीज का नेम, चाहे वो कोई प्लेस हो, ठीक है, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो. आप एक गेम भी खेलते हैं, सॉरी एस, आप एक गेम खेलते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग, राइट? Yes, ma'am. हाँ, बहुत सारे बच्चों ने खेली होगी. तो उसमें आप एक्चुअली क्या लिखते हैं, यू राइट द नाउन्स ओनली, ठीक है. आप में आपको ऐसे आता है ना, दो बच्चे होते हैं, आप इस तरह से कॉलम बनाते हैं एंड देन इन द कॉलम्स यू राइट, यहाँ पे आपने लिखा होता है नेम, यहाँ लिखा होता है प्लेस, यहाँ एनिमल और यहाँ पे थिंग. और फिर एक बच्चा काउंटिंग करता है मन में, अल्फाबेट्स बोलता है A to Z, दूसरा उसको स्टॉप कहता है. और जैसे ही स्टॉप होता है, फिर जो भी लेटर आया होता है, जो भी अल्फाबेट आया होता है, उससे आप सभी यहाँ पे फिल करते हैं कुछ ना कुछ, राइट? राइट. तो ये जो चीजें आप यहाँ पे फिल करते हैं, एक्चुअली यू आर फिलिंग द नाउन्स. तो ये नेमिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे, इनको हम नाउन्स कहते हैं. अब नाउन्स आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अपनी ग्रामर क्लास की, या फिर जो क्लास है हमारी कम्युनिकेशन के लिए, वहाँ वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द डिटेल्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है. किस तरह का नाउन है, कैसा नाउन है, हम उसमें नहीं जाएंगे. हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो भी चीज, जैसे अगर मैंने बोला कॉपर, या मैंने बोला ब्यूटी, अगर मैंने बोला गैंग, आर्मी, तो ये जितने भी चीजें हैं, डॉक्टर, ये मैं कोई ना कोई नेम ले रही हूँ, राइट? ये सारे के सारे वर्ड्स, ऑल ऑफ दीज आर नाउन्स ओनली, ठीक है. आपने सेंटेंसेस में ये याद रखना है कि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस में हम नाउन को यूज करते हैं. समटाइम नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, समटाइम्स इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. कभी कभी हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, कभी कभी हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. तो अब मैंने बात की एक सेंटेंस की, ठीक है. नाउन आपको क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, ma'am. एक्सीलेंट. अदर्स बेटा सभी बताओ, एवरीबडी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if noun is clear to all of you, then we have to understand कि ये जो हमारे sentences हैं वो क्या होते हैं. What are sentences? जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, या जिसको भी हम सेंटेंस कहते हैं, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप से एंड होगा, ठीक है. और हमारे सेंटेंस में अदर देन नाउन वी यूज मेनी अदर थिंग्स. बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं अदर देन नाउन, ठीक है. क्या चीजें यूज करते हैं वो हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे वर्ब है, ठीक है, वर्ब में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि फॉर स्पीकिंग वर्ब ही है जो हमें डिफाइन करती है कि हम कौन सा सेंटेंस, किस टेंस का, किस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके. तो यहाँ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंसेस लेंगे, व्हाट इज अ सेंटेंस एक्चुअली, फर्स्ट टेल मी दैट. पता है सेंटेंस हम किसको कहते हैं? सेंटेंस एक्चुअली इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सेंस, ठीक है. अगर मैंने लिखा यहाँ पे जॉन हार्ड वर्क्स, ये लिखा मैंने, तो ये
कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स डू यू थिंक दे आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस? जॉन हार्ड वर्क्स, ये तो किसी शॉप का वो लग रहा है मुझे, हेडिंग है ना, जॉन हार्ड वर्क्स, Yes, ma'am. बट इट्स नॉट अ सेंटेंस, राइट? इसी को अगर हमने प्रॉपर सेंटेंस बनाना हो कैसे बनेगा? Works hard. हम्म, John works hard. एक्सेलेंट, जॉन वर्क्स हार्ड, ठीक है, हम इसको लिखेंगे जॉन वर्क्स हार्ड, और यहाँ पे आफ्टर राइटिंग हार्ड हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है? तो जॉन वर्क्स हार्ड ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ हमारे पास, जिसका मीनिंग है कि जॉन बहुत मेहनत करता है। अब देखो इस सेंटेंस में हमने एक नेमिंग वर्ड यूज किया है, दिस वन, दिस इज अ नाउन। हमने यहाँ पे बताया है एक्शन, ठीक है, एक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं वी कॉल देम एज वर्ब्स। और कैसे वर्क करता है, एक्शन की क्वालिटी बता रहा है हार्ड, ठीक है? तो आगे कुछ वर्ड्स होंगे जो एक्शन की क्वालिटी बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, वर्ड, उसको क्या कहेंगे? टेल मी। एनी आइडिया? जॉन वर्क्स हार्ड, ठीक है। अब हम ना बेटा, आज तो हम फोकस कर रहे हैं नाउन पे और सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। आगे हम करेंगे, जैसे ये वर्ब है ना, इस वर्ब की क्वालिटी अगर ये वर्ड बता रहा है तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब। आपने याद रखना है, ठीक है। जो वर्ड वर्ब की क्वालिटी बताएगा दैट इज कॉल्ड एज एडवर्ब। क्लियर? अब इस सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन कॉल्ड एज जॉन, हम जॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में हम बात करते हैं, जो मेन पर्सन है, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में एक और नाउन यूज हुआ है बट इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस आई राइट हियर, रोमा रीड्स अ बुक, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज अ सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट बताओ बेटा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बताइए। हु रीड्स अ बुक? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हु रीड्स अ बुक? कौन बुक रीड करता है? Roma. रोमा। तो रोमा इज सब्जेक्ट हियर इस सेंटेंस में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रोमा, तो रोमा इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये बुक है, ये भी एक और नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। सो द नाउन विच इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। हम जब पैसिव वॉइस करते हैं तो हम वहां पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। बट यू शुड नो कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इन अ सेंटेंस वो होगा जो भी है तो नाउन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am.
ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, दैट्स ग्रेट। तो आज देखो हमने अभी क्या समझा, हमने ये समझा कि नाउन जो है हमारा वो नेमिंग वर्ड है, और नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके अभी हम आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्ड फॉर द डे। जो आज के लिए हम वर्ड्स करेंगे ना, तो आउट ऑफ 2 वर्ड्स राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट वर्ड, एंड आफ्टर सम टाइम आई विल गिव यू वन फ्रेज ऑल्सो टू लर्न। जो आप एक फ्रेज दूंगी मैं आपको, वो भी आपने लर्न करना है, उसको भी आपने प्रैक्टिस करना है ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, तो आपको द वर्ड विच आई एम गोइंग टू गिव यू दैट इज लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। तो व्हाट इज दिस लॉर्ड? एनी आइडिया? सुना है आपने, किसी ने भी ये वर्ड सुना है लॉर्ड? मैम प्रेज करना किसी की। एक्सीलेंट, प्रेज करना, राइट, प्रेजिंग समवन। सो दिस इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर प्रेजिंग। लॉडेशंस इसका दूसरा फॉर्म हो सकता है, लॉडेशंस, राइट। तो ही लॉडेड मी बिकॉज आई डिड समथिंग गुड, फॉर दैट रीजन ही लॉडेड मी, राइट। आई गॉट एक्सीलेंट मार्क्स, my teacher lauded me, my parents lauded me. Clear? This is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the next word which I am going to give you, that is fetch. आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज में ये वर्ड पढ़ा होगा, fetch. So what is this fetch? My mother told me to fetch some books from the market. I told my sister to fetch my bag into my room. What do you guess? Hmm? To go and bring something. To bring. Okay, go is not associated with that, to bring only. Excellent, very good. So to bring or to get. Okay, to bring or to get, that is the word that is you or that is the meaning of the word fetch. Okay, clear? Yes, ma'am. Okay, just remember this word, these 2 words, and today I'm going to give you one more word that is very common these days. Most of the people use this word, aura. What is it? Hmm? Aura. His aura is vibrant. The person was standing there and his aura was so great that we loved the area. Or see, many people say you have a positive aura, or due to your presence here, the aura of this place has changed. So what is that? What do you mean by aura? Atmosphere. Atmosphere. Excellent. Atmosphere. Right? The surrounding, the positivity. Okay, aura, positive aura means positivity, the distinct quality that seems to surround someone. ठीक है, किसी पर्सन के, जैसे हिंदी में आप बात करते ना, उसका तेज निकल रहा था उसके चेहरे पर, वो बहुत तेजस्वी था, चेहरे पे बहुत तेज था, चमक थी, तो ये ऑरा इज दैट ओनली। ठीक है, ऑरा कैन बी एसोसिएटेड विद नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। जैसे हिल्स के लिए वी कैन से द ऑरा इन द हिल्स इज मैजिकल, तो वहां एटमॉस्फेयर भी हो गया। यू फील totally different when you are in hills, and when you are in city you feel totally different, right? So that is what this. Okay, clear? This is clear, beta?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And now I'm going to give you the phrase, or you can say the proverb, which you can use. It is one hand washes the other. Washes the other. Okay, one hand washes the other. सुना है आपने ये पहले? One Yes, hand ma'am. washes the other. Okay. What is the meaning of this? Helping each other. Helping each other. Okay. If I say that it is similar to tit for tat, what is the meaning of that? Tit for tat. क्या होता है tit for tat? मैम जैसे को तैसा. जैसे को तैसा. ठीक है. तो वन हैंड वॉशेस द अदर भी वैसे ही है. जैसा एक हाथ करेगा दूसरा भी वही करेगा, तभी एक दोनों हैंड्स वॉश करेंगे. राइट. Another word for this particular phrase is give and take. ठीक है. give and take भी आप बोल सकते हैं. ठीक है. और one more expression is there, that is you scratch my back and I will scratch yours. Okay, you scratch my back and I will scratch yours. आप मेरी बैक स्क्रैच करो, मैं आपकी बैक स्क्रैच करूंगा. सेम. तो ये जो फ्रेजेस मैंने आपको बताए ना, ये सारे इनका मीनिंग सेम है. वन हैंड वॉशेस द अदर, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स. लेकिन जो मैंने आपको प्रोवर्ब देना है, दैट प्रोवर्ब इज मीनिंग सेम है. ठीक है. द प्रोवर्ब इज क्विड प्रो क्यूओ. ठीक है. क्विड प्रो क्यूओ. अच्छा है ना ये? Yes, ma'am. मीनिंग्स मैंने आपको बता दी. ये जितने भी मैंने आपको बताए इससे पहले, दीज ऑल आर द मीनिंग्स. ठीक है. वन हैंड वॉशेस द अदर, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, एंड यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स. इन सब का मीनिंग सेम है. ठीक है. क्या मीनिंग है और या क्या फ्रेज है? दैट इज क्विड प्रो क्यू. तो ये जो है अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग. आपने कुछ किया, उसके लिए हम आपके लिए कुछ करेंगे. ठीक है. आपने अच्छा किया तो हम भी अच्छा करेंगे. आपने मुझे दिया तो हम भी आपको देंगे. आपने मेरी बैक स्क्रैच की तो मैं भी आपकी स्क्रैच करूंगा. एक हैंड से ही दूसरा हैंड वॉश होगा. दैट इज हेल्पिंग अदर्स फॉर सम एडवांटेज. राइट. तो ये फ्रेज जो है आपने ये यूज करना है. इसको यूज करके आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. और यू कैन राइट अ स्टोरी. 3-4 लाइन्स में एक स्टोरी लिखनी है एंड देन यू कैन जस्ट सेंड इट ऑन व्हाट्सएप टू मी. ओके. Okay, ma'am. Okay, this everyone has to do. So this is the phrase I have given you. See, actually I have given you one phrase, but it is mixture of 1, 2, 3, 4 and 5 phrases, right? Right, beta? Yes, ma'am. Okay, so now I am going to give you one thought, very important thought, which I like and I think you all must have also read it somewhere. It is
If you want to be powerful, educate yourself. If you want to be powerful, what you should do? Educate yourself. आप अपने आप को educate करो, you will get all the power. Okay? Okay, beta? Yes, ma'am. Okay. So, do you want to ask anything? Beta, do you want to ask anything? कुछ पूछना है आपको किसी ने? No, everything is clear. Yes, ma'am. Okay, so for today we'll be doing this much only. Okay? Okay, ma'am. We will be continuing